हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 सीबीएसई एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान के जो आज हम चैप्टर करेंगे इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्स। पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन काफ़ी महत्वपूर्ण है 12वीं कक्षा के बच्चों के लिए। इसमें जो है हम पॉइंट व्यू एनालाइज करेंगे। पूरे एनसीईआरटी चैप्टर को जो है इसी वीडियो में हम कवर करेंगे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। इसमें हम पॉइंट व्यू हर एक बात का एनालाइज करेंगे, समझेंगे और जानेंगे, और ये आपके लिए एग्ज़ाम व्यू से बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। ये सारे पॉइंट काफ़ी महत्व रखेगा, लेकिन पॉइंट डिस्कस करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए, इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान एनएसएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। टुडे वी डिस्कशन मोस्ट इम्पोर्टेंट chapter here, environment and natural resources. You know that environment and natural resources, class 12 CBSE NCERT political science here. Next point arrive here, that is important. The point here, global warming. Global warming is the most important topic for the all competitive exam here. There is a thin layer of ozone gas above the atmosphere through which the sunlight filters and reaches the earth. It protects us from the harmful ultraviolet ray of the sun. You know that's important. That's important because ozone layer is the most important here, because it is protect us from the harmful ultraviolet ray of the sun. There is a hole in the layer of this gas, due to which now the sun's ray come directly to the earth, and due to which the temperature of earth is increasing. That's important. The temperature is here increasing. Due to the increasing the temperature, the ice of glacier is melting rapidly, due to which the sea level is rising, and due to this the temperature in those places is increasing. But those who live near the sea are in the greater danger. That's important. There is a glacier is a melting rapidly, due to which the sea level is rising, because there is the global warming. Global warming is causing is a harmful here, and there is the living the near of the sea are the greater dangerous here. Carbon dioxide, methane and hydrofluorocarbon, these gas are the main causing of global warming. You know that the main reason here gas here, carbon dioxide, methane and hydrofluorocarbon. Chlorofluorocarbon is the most important to the harming. There is a global warming here, and these gas are maintained causing of a global warming. And the next year, common but separate responsibility here. Common but separate responsibility here according to global warming. You know that global warming is an issue for the global level. That's important here. Therefore, the relation to be a protection of global commons wealth, the responsibility of development countries should be more, and the responsibility of developing countries should be reduced. You know that that's important, common but separate responsibility here, because global warming is not a one person's use here. It is all of
world global warming is important, and there is a common but separate responsibility for the all people here. The next here, Kyoto Protocol. Kyoto Protocol this is a protocol was agreed upon among the world public regarding environmental problem in 1997 in a Kyoto city of Japan. That's important. The regarding the environmental problem in a 1997 is a Kyoto city of Japan. It's called Kyoto Protocol. In 1992, some principles were decided to this agreement, and this framework of principle, United Nations Framework Convention and Climatic Change, was assigned agreeing to it, and this is called to the Kyoto Protocol. That's important. This is called Kyoto Protocol here. India signed and ratified the Kyoto Protocol in 1997. In 2002, there is the most important. India signed and ratified the Kyoto Protocol here 1997 in 2002. India, China and other developing country has been exported from to the obligation of Kyoto Protocol because they did not contribute much to the emission of the greenhouse gases during the industrialization period. That's important. There is India and China. There is the obligation of the Kyoto Protocol. Reason being here, did not be contribute much to the emission of greenhouse gases during the industrialization period. The era of industrialization is considered responsible for the current global warming and climate change. That's important here. The industrialization considered is responsible for the current global warming and climate change here. The next here, forest provenance. There is important. There are some places in a villages and villages which are there considered scarce. It is a belief that goddess and the goddess decide there this place. Another trees here are not cut. Whatever may be a traditional, but due to this practice, the tree plants has been saved. That's important. The conscious secular they believe that is God and goddess is inside this place, and there's a not cut a tree. That's important. Do not cut a tree. That's important वर्ड here. यहाँ पर जो हम चैप्टर कर रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है और चैप्टर है पर्यावरण और प्राकृतिक संरक्षण, क्लास 12वीं CBSE NCERT पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान के जो हमारा चैप्टर है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसके अंतर्गत हमारा अगला पॉइंट जो आया है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहाँ पॉइंट है ग्लोबल वार्मिंग। जैसे कि आपको पता ही होगा कि ग्लोबल वार्मिंग जो है एक बहुत बड़ी समस्या विश्व के समक्ष खड़ी कर दी है। कारण क्या है? इंसानों का ना समझ होना, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग कॉजिंग जो हो रही है बहुत ही खतरनाक इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है और मिलेगा, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसा हम समस्या है जो कोई एक देश मिल के इसको सोल्यूशन नहीं कर सकता। इसके लिए पूरे विश्व को साथ में आना पड़ेगा और सारे विश्व मिल के जो है इसकी समस्याओं को सोल्यूशन करना पड़ेगा। लेकिन देखा जाए तो ग्लोबल वार्मिंग के जो इफ़ेक्ट है सबसे अधिक हमारे घर में ही पड़ते हैं और ग्लोबल वार्मिंग के कारण भी हमारे घर में ही होते हैं। आप पूछिएगा कि ऐसा कैसे? देखिए दोस्तों, अगर आप बात करोगे तो ग्लोबल वार्मिंग मैक्सिमम कॉजिंग किसके कारण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और CFC गैस के कारण। आप सोचिएगा ये CFC गैस होता क्या है? तो मैं बता दूं, CFC गैस वो गैस है जो आपके जो है पानी पीते हो तो आपको मन को तृप्त कर देता है। जब आप घर में बैठते हो तो आपको ठंडक देता है। यानी मैं बात यहाँ कर रहा हूँ आपका फ्रीज AC की, क्योंकि फ्रीज AC जितने भी कूलिंग करने वाले मटेरियल्स होते हैं सब में जो है CFC भरे जाते हैं और आपको कितना आनंद आता है गर्मियों में जब ठंड में आप जाते हो तो। लेकिन आपको ये पता नहीं होगा कि उन गैसों में CFC के कारण ऐसा होता है और इसके कारण आपके भी शरीर पे इफेक्ट धीरे धीरे पड़ता जा रहा है
और इसका सबसे बड़ा तो कारण ये होता है एसी में रहने से कि आपका जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर पड़ जाती है। तो मैंने कहा ना कि आप लोग स्वयं ही घर में यूज़ कर रहे हो। मैं आपको एक बात बता दूं, जब फ्लोरोकार्बन की खोज हुई, जब साइंटिस्टों ने इसको ठंडक करने वाले यंत्र के रूप में देखा तो वो बहुत खुश हुए। लेकिन जब इसका डिसएडवांटेज को इन्होंने एनालाइज किया तो इनका भी शब्द उसी तरह था जैसे आइंस्टाइन का था जब उसने परमाणु बम बना दिया था। वो भी अफसोस मनाया कि मैंने ये न जाने क्या खोज कर दी। और यहाँ पर CFC कार्बन बनाने वाले साइंटिस्टों ने भी अफसोस जताया कि हमने प्रकृति को फिर से एक जो है नए दर्दनाक घटना की तरफ अग्रसर कर दिया, जो धीरे धीरे लोगों को खोखला करता जाएगा। और ऐसा ही हुआ। बाद में जब इसका इस्तेमाल होने लगा तो बड़े बड़े लोग जो इसके आदी हो गए, फिर इसको जो है हमारे देश से, पूरे विश्व से हटाया नहीं जा सका। और आज इसके कारण जो है बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। तो ये तो कहते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो आपको पता होना चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग देखा जाए तो वायुमंडल के ऊपर जो ओजोन गैस की एक पतली सी परत है, वायुमंडल के ऊपर एक ओजोन की परत होती है। ये आपको दिखती नहीं है, लेकिन ये परत आपके लिए बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। अगर ये परत ना हो तो सूरज से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी विकिरण जो है आप तक सीधा पहुंचेगा और आपको नुकसान पहुंचाएगा। तो देखा जाए, जिससे सूर्य की रोशनी छन कर पृथ्वी पर पहुंचती है, यानी जब सूरज की रोशनी इन ओजोन लेयरों गैसों में आती है तो उससे जो है हम हानिकारक पराबैंगनी विकिरणें जो होती छन जाती है और तब पृथ्वी पर हम तक पहुंचती है, तो हमें नुकसान नहीं पहुंचती है। और ये सूर्य के हानिकारक पराबैंगनी विकिरणें से हमें बचा लेती है, क्योंकि पराबैंगनी विकिरणें जो होती है काफ़ी खतरनाक होती है। और आजकल हम जो है एक्सरे में यूज़ करते हैं। आपने देखा ही होगा कि कहीं भी एक्सरे होता है तो वहाँ लिखा होता है कि बच्चे और गर्भवती को आना यहाँ पर सख्त मना है, क्योंकि हानिकारक पराबैंगनी विकिरण इतने काफ़ी हार्मफुल होते हैं, काफ़ी ये खतरनाक होते हैं। जब कोई माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो होता है जब ऑटोक्लेव करता है या अपनी मीडिया बनाता है तो कुछ समय के लिए जो है अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी विकिरण को ऑन कर देता है। इससे जितने भी बैक्टीरिया वायरस होते हैं ख़त्म हो जाता है। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बात होता है। और इस गैस की परत में छेद हो गया है। देखिए, जो ओजोन गैस की एक लेयर थी उसमें छेद हो गया है, और छेद होने का मतलब है एक नया मुसीबत, जिससे अब सूरज की किरणें डायरेक्ट पृथ्वी पर आ जाती है, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। जैसे कि आप देख ही सकते हो कुछ ही दिनों में जो पृथ्वी का तापमान जो है कितने अधिक मात्रा में वृद्धि किया है। तापमान बढ़ने के कारण ग्लेशियर की बर्फ़ तेज़ी से पिघल रही है, जिसके कारण समुद्र का सतह बढ़ता ही चला जा रहा है। ग्लेशियर कहते तापमान बढ़ेगा तो ग्लेशियर का बर्फ़ पिघलेगा ही पिघलेगा, तो जनरल सी बात है। और समुद्र के लेवल बढ़ते चले जाएंगे और आए दिन आपको जो है बाढ़ की समस्या से झेलना पड़ सकता है। इससे उन स्थान पर ज़्यादा खतरा होता है जो समुद्र के किनारे बसे हुए हैं। आपको पता ही होगा कि हमारी सभ्यता, जो भी सभ्यता आई है, सबका एक विचार होता है कि सभी सभ्यता जो है किसी न किसी नदियों के आसपास ही बसी हुई है। और जैसे जैसे यहाँ पर देखा जाए ग्लेशियर पिघलेगा तो इन नदियों में जो है बाढ़ आने की संभावना दिन पर दिन जो है बढ़ता चला जाएगा, जिससे मानव जनजाति के जो है नष्ट होने का संभावना बनता रहेगा। देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन ये गैस जो है ग्लोबल वार्मिंग के प्रमुख कारण होते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बताया भी कि कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही है। देखिए, हम सांस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, चलिए पौधा जो है इसको ऑक्सीजन में बदल के हमें दे देता है। लेकिन जो हम इंडस्ट्री पोल्यूशन कर रहे हैं, जो हम गाड़ियों वाहनों से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, और जिस प्रकार हम पेड़ पौधे ख़त्म करते जा रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का ऑब्जर्वेशन इतनी नहीं हो पा रही है। तो इसके कारण जो है हमें कई तरह के मुसीबत भी झेलना पड़ सकता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इम्पोर्टेंट होता है पौधों के लिए, क्योंकि वो भोजन बनाने में इसका उपयोग करते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं। लेकिन पौधा भी कितना कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जॉर्व करेगा, क्योंकि पृथ्वी में देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इतनी बढ़ती चली जा रही है दिन पर दिन, और पेड़ पौधे इतने कम होते चले जा रहे हैं कि शायद अब हर क्षेत्र में कार्बन डाइऑक्साइड ही हमें देखने को मिले। अगर हम आगे बात करें साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियाँ, साझी का मतलब यही होता है कि विश्व को समझना चाहिए कि ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या जो है सिर्फ एक देश की नहीं है, ये पूरे विश्व की है। अगर कहीं भी इसकी लेयर में हॉल हुई है, अंटार्कटिका में हो चुकी है ऐसे तो ये धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। और आप ये नहीं कि आप जाके मशीन को ले जाके वहाँ पर रिपेयर कर दोगे, ऐसा संभव नहीं है,
क्योंकि नेचर की चीज़ों को हमें प्रिपेयर नहीं कर सकते इतनी आसानी से, और हो भी नहीं सकता। वैश्विक साझी संपदा की साझी संपदा की सुरक्षा के संबंध में विकसित देशों की जिम्मेदारी भी अधिक होनी चाहिए। मैं ये एक बात कहता हूँ, ना तो विकसित देशों की अधिक जिम्मेदारी होनी चाहिए, न विकासशील देशों की। दोनों को बराबर ये बात को समझना चाहिए कि दोनों के दोनों इसी जलवायु में, इसी ही पर्यावरण में जीते हैं, इसलिए दोनों की साझेदारी होना जरूरी होता है। कहते हैं विकासशील देशों की जिम्मेदारी कम की जानी चाहिए, ये बात गलत है। दोनों को साझा जिम्मेदारी होनी चाहिए, बराबर होना चाहिए, और इसके प्रति लोगों को जागरूक करने की भी ज़रूरत है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात बनती है। ये नहीं कि हम विकसित देशों पर इसकी ठिकरा डाल दें और विकासशील देश जो हैं वो अलग हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। हर कोई बंदा गलती कर सकता है, चाहे वो विकसित देश हो या विकासशील देश हो, क्योंकि सभी देशों में कारखाने तो चलते हैं। विकसित हो गए हैं क्योंकि उनके पास संसाधन थे, ये अविकसित हैं क्योंकि इन्होंने संसाधनों का गलत उपयोग कर रहे हैं। तो देखा जाए तो दोनों जो है साझा की जिम्मेदारी लेने की ज़रूरत है, दोनों की जिम्मेदारी सामान्य होना चाहिए। उसके पश्चात देखें क्योटो प्रोटोकॉल। आखिर क्योटो प्रोटोकॉल थी क्या? देखा जाए तो पर्यावरण समस्या को लेकर विश्व जनमानस के बीच जापान को क्योटो शहर में 1997 में इस प्रोटोकॉल पर सहमति बनी। यानी देखा जाए तो ये भी एक तरह की ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका काम था ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं का समाधान किया जाए, और इसलिए जापान के क्योटो शहर में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, एक सम्मेलन हुआ जिसका अंजाम 1997 में दी गई, और इसमें एक सहमति बनी। कहते हैं 1992 में इस समझौता के लिए कुछ सिद्धांत तय किए गए थे, और सिद्धांत की रूपरेखा यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज पर सहमति बताते हुए हस्ताक्षर भी किए गए, और इसे ही क्योटो प्रोटोकॉल कहा जाता है। यानी एक तरह का 1992 में जो समझौता किया गया था कुछ सिद्धांतों पर और उसके रूपरेखा बनाने पर, तो उसी को हम जो है क्योटो प्रोटोकॉल कह सकते हैं। देखा जाए तो भारत ने 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल यानी 1997 पर हस्ताक्षर किए और इसका अनुमोदन भी किया। यानी भारत ने 2002 में जो है क्योटो प्रोटोकॉल पर साइन करके जो है अपनी जिम्मेदारी को यहाँ निभाया। भारत, चीन और अन्य विकासशील देशों को क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से छूट दी गई है, क्योंकि औद्योगिकरण के दौरान में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के मामलों में इनका कुछ खास योगदान नहीं था। देखा जाए तो जो छूट दी जाती है दोस्तों वो गलत होती है। इन्हीं कारणों से जो है वो देश जो है ये प्रोटोकॉल को जो है नहीं मानते हैं, और इनके द्वारा न जाने कितनी तरह की गलतियां हो जाती है। बेशक भारत, चीन और अन्य विकासशील देशों को क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से छूट दी गई है, क्योंकि उनमें औद्योगिकरण की दौर में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के मामलों में इनका कुछ खास योगदान नहीं था। लेकिन बात है कि छोटी छोटी योगदान भी हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकता है। औद्योगिकरण के दौरान को मौजूदा वैश्विक ताप वृद्धि और जलवायु परिवर्तन का जिम्मेदार माना जाता है। तो जर्नल सी बात है, जितने औद्योगिकरण हो रहे हैं और होते जा रहे हैं, आज भारत में औद्योगिकरण की एक नई सीमा तक पहुँचते जा रहा है। तो इसके कारण ही वैश्विक ताप वृद्धि हुई है, और जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा जिम्मेवार यही कारण हो सकते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। देखा जाए तो वन प्रांतर, देखिए वन प्रांतर काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते गांव और देहातों में कुछ जगह ऐसी होती है जो पवित्र माने जाते हैं, और ऐसा माना जाता है कि इस जगह पर देवी देवताओं का वास होती है, इसलिए यहाँ के पेड़ को काटा नहीं जाता है। और यह परंपरा चाहे जो भी हो, पर इस प्रथा के कारण पेड़ पौधों का बचाव हुआ है। जैसे भारत में देखा जाए तो पीपल पेड़ पौधों को जो है काटा नहीं जाता है, लेकिन आज औद्योगिकरण के कारण आज पीपल के पेड़ क्या, सभी पेड़ों को जो इस तरह से काटे जा रहे हैं जिनका उनका कोई अर्थ ही नहीं है। लेकिन पीपल का पेड़ देखा जाए तो ये इसलिए भी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ये हर समय ऑक्सीजन हमें प्रदान करता रहता है, लेकिन लोग इस बात को नहीं समझते हैं। कहते पीपल को पेड़ को जो है गलत अवधारणाएं देकर उसको कटवा देते हैं या उसको नष्ट कर देते हैं। लेकिन देखा जाए तो भारत में ऐसी परंपरा तो रही है कि पौधों में देवी देवताओं के वास माना जाता है, जिनके कारण जो है उनको काटी नहीं जाती है, और ये परंपरा सभी लोगों को मानना भी चाहिए, क्योंकि इससे कम से कम पेड़ पौधे को तो काटा नहीं जाएगा ना, पेड़ पौधे सुरक्षित तो रह जाएंगे। अगर पेड़ पौधे सुरक्षित रहेंगे तो कहते हैं हर मानस और हर जीव जंतु भी सुरक्षित रह जाएगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। यहाँ पर हर एक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए। कहते हैं हर एक देश को समझना चाहिए, और हमें ये ठिकरा नहीं डालना चाहिए कि ये विकसित देश का कार्य है या विकासशील देश का कार्य है। हमें दोनों को मिलजुल के इस पर कार्य करने की ज़रूरत है।
और औद्योगिकरण जितना हो सके कम करने की ज़रूरत है और शहरीकरण पे भी रोक लगाया जाए। और जिन क्षेत्रों में पेड़ पौधे काटे जाते हैं बड़े बड़े बिल्डिंग बनाने के लिए, उन पे कानूनी कार्रवाई किया जाए। इससे हम पर्यावरण को सुरक्षित कर सकते हैं और अपने देश को भी सुरक्षित कर सकते हैं, क्योंकि पर्यावरण किसी एक का जागीर नहीं है, पर्यावरण पूरे विश्व के लिए है। क्योंकि एक भी देश अगर ऐसी गलती करती है तो इसका प्रभाव दूसरे देशों पर पड़ना स्वाभाविक हो जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है जो मैंने आपके समक्ष रखा। अगला पॉइंट और भी महत्वपूर्ण है, तो आप बने रहे तिरपान स्टडी सेंटर के साथ और जितना हो सके लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। क्योंकि पहली बार वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो जर्नल सी बात दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने बारे में जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ है। यहाँ 8 से लेकर MA तक के बच्चों के लिए बहुत कुछ है, समझने के लिए, सोचने के लिए है। तो सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, अभी तिरपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करने वाले में सेव कीजिए।